ओके, ये थोड़ा सा पोर्शन स्किप हो गया. Let me just revise it once, okay? So I was talking about the displacement vector, which I have already defined it earlier. When I divide the displacement vector with the proper time, because proper time is an invariant quantity, so it's a special quantity, then I end up getting what is known as the 4 velocity. Okay, when I write the components separately, then the components for the 4 velocity are this. तो यहाँ पे the first component is a time component, and the next 3 components are what is known as the spatial components. Spatial components. So हो गया आपका. This is the construction of the 4 vector for velocity. So the 4 velocity is what you can say as the rate of change of 4 position with respect to proper time along a particular curve. So you can say that 4 velocity vector is the rate of change of 4 position. 4 position है ना, यहाँ पे dx mu है. X mu is the, let's suppose, the position of any given particular point in 4-dimensional space time. So the rate of change of 4 position with respect to proper time. This is important, okay? सारी quantities को हम proper time के respect में ही define करेंगे. This is important. With respect to proper time along a curve in 4-dimensional space time. ठीक है, तो ये है आपका फाइनली द 4 वेक्टर. यू म्यू इज सिंपली आपका गामा सी टेम्पोरल कंपोनेंट और गामा जो ऑर्डिनरी वेलोसिटी वेक्टर है. ठीक है, ये गामा सी आपका टेम्पोरल कंपोनेंट हो गया. ये आपका व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट ऑर्डिनरी वेलोसिटी वेक्टर कंपोनेंट्स जो नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय गामा ऑफ कोर्स. ऑर्डिनरी वेलोसिटी, बिकॉज वी एक्स वी वाई वी जेड है यहाँ पे. वी एक्स वी वाई वी जेड क्या है? दीज आर जस्ट ऑर्डिनरी वेलोसिटी डेफिनेशंस दैट वी ऑलरेडी यूज. ऑर्डिनरी वेलोसिटी वेक्टर components these are just ordinary velocity vector components that are part of the second, third, fourth term in the 4 velocity. Is this clear beta? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ओके, मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ डिफाइन किया है कि ये 4 वेलोसिटी है, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज है. अगर आपको याद हो, मैं लास्ट 2-3-4 लेक्चर्स में जो 4 वेक्टर्स के बारे में बहुत सारे चीज़ें डिस्कस कर रहा था, तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज है फॉर अ क्वांटिटी टू बी अ 4 वेक्टर. इट इज़ नॉट जस्ट इसेंशियल कि मैंने बस ऐसे डिफाइन कर दिया अपनी मर्जी से. वी हैव टू सैटिस्फाई दोज क्वांटिटीज. फॉर एग्जाम्पल, देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर, and the quantity must be invariant under the transformation equation, and the transformation equation of the components must have a certain form which involves a Lorentz transformation matrix. वो मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में कि इट इज़ वैलिड. लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ 4 वेक्टर. जैसे कि मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम नॉर्मल वेलोसिटी की बात करते हैं, ऑर्डिनरी वेलोसिटी की बात करते हैं, ऑर्डिनरी वेलोसिटी की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं लेट्स सपोज v इज़ इक्वल टू vx cap vx I cap plus vx I cap plus vy j cap plus vz k cap हम बोलते हैं. फिर हम कहते हैं व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. v का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब स्पीड क्या है, तो हम लिखते हैं इट इज़ इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर. यस यस और नो? Yes sir. So it is not only enough to write down the 4 vector, you also need to find out what is the magnitude of it. ठीक है, आपके पास 4 components तो आ गए, लेकिन उन components से आप magnitude को कैसे find out करोगे? ठीक है, magnitude होता क्या है बेसिकली? दिस इज सिंपली जस्ट नथिंग बट v वेक्टर डॉट प्रोडक्ट v वेक्टर उसका स्क्वायर रूट. ठीक है, जो v वेक्टर है उसका जो डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ है, बेसिकली जो नॉर्म है, नॉर्म उसका स्क्वायर रूट से आपको मैग्नीट्यूड मिल गया.
ठीक है. सो अभी हम वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट what is the norm of a 4 vector. So if this is the 4 vector that you have, we are interested in finding out a norm. So before I do that, okay, let me first do this and then I'll come to transformation. So let's look at the inner product of a 4 vector itself, or the length or norm of 4 vector for velocity, 4 velocity vector, जैसे भी आप लिखो इसको. And we want to show that this is invariant. हमने 4 वेक्टर्स के केस में हमने बताया था कि जो लेंथ होता है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता. जैसे कोई भी वेक्टर हो 3 डायमेंशनल स्पेस में, आप इसको रोटेट कर दो, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर का जो लेंथ है वो चेंज नहीं होता है. सिमिलरली दैट क्वालिटी मस्ट ऑल्सो बी सेटिस्फाइड बाय द 4 वेक्टर्स देमसेल्व्स, कि 4 वेक्टर का जो इनर प्रोडक्ट है विद इटसेल्फ, उसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हो गया उसका लेंथ. तो वो जो लेंथ है दैट मस्ट बी अनचेंज, दैट मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगर आप किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका वेलोसिटी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा. इट शुड नॉट चेंज. ठीक है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द लेंथ or the norm of a 4 vector or velocity vector is invariant. It's a very important quantity, is invariant. In fact, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ अ 4 वेलोसिटी इज इनवेरिएंट, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ 4 एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इनवेरिएंट, प्रूव ये मैं मेंशन कर देता हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी मच पॉसिबल. Prove that at the length of or the magnitude of 4 velocity is invariant. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास. या फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है प्रूव दैट एक्सेलरेशन के लिए आ जाएगा, वो भी मैं प्रूव करूँगा. प्रूव दैट लेंथ ऑफ एक्सेलरेशन या मोमेंटम 4 वेक्टर, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इज इनवेरिएंट. ऑलराइट. एंड व्हाट यू वांट, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ऑल यू नीड टू डू इज, आपको डेफिनेशन पता है क्वांटिटी का, यू टेक द इनर प्रोडक्ट. तो इनर प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं? इफ यू रिमेंबर माय लास्ट लेक्चर, यू टेक द कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर एंड द कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर. याद है? Yes, sir. Yes, sir. And by Einstein summation convention, it simply means that the mu goes from 0 to 3 and you look at all the terms and you do a summation in this particular manner. So what is this? This is nothing but u0 u0, right? And this is u1 u1, and this is u2 u2, and this is u3 u3. So this is equal to minus u naught square प्लस u1 स्क्वायर. क्योंकि माइनस टर्म क्यों आया? इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू गो फ्रॉम कोवेरिएंट टू कॉन्ट्रावेरिएंट, यू इंट्रोड्यूस अ माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ द टेम्पोरल component only, not in the other components. u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर. ओके. अब यहाँ पे आपका जो u0 u1 u2 u3 है वो क्या है? अभी हमने ऑब्टेन किया ना, दैट इज जस्ट गामा c, गामा vx, गामा vy, गामा vz. दीज आर द कॉम्पोनेंट्स. तो इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके देखते व्हाट वी गेट. सो दिस इज माइनस u नॉट. व्हाट इज u नॉट? इट्स गामा c स्क्वायर. व्हाट इज u1? इट इज गामा vx square. What is u2? It is gamma vy square. What is u3? It is gamma uz. Sorry, gamma vz. ठीक है. तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया and this is equal to minus 1 minus v square upon c square. ऊपर आ गया आपका यहाँ पे c स्क्वायर प्लस यहाँ पे गामा को बाहर निकाल लेते हैं ना, गामा स्क्वायर
minus c square plus vx square plus vy square plus vz square. So gamma square is nothing but 1 minus v square upon c square. तो ये आपका हो जाएगा c square minus v square upon c square, है ना. तो what is vx square plus vy square plus vz square? This is nothing but v square, the magnitude square. तो ये आपका हो गया, माइनस को अगर हम बाहर निकाल दे, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. यस, आर यू फॉलोइंग? Yes, sir. So the denominator and the numerator cancels out and you end up getting minus c square. So the minus c square is a constant. Minus c square is a constant. It is Lorentz invariant. It's a constant, है ना. It is Lorentz invariant. मतलब अगर आप कोई लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये क्वांटिटी जो है इट रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर अ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. दैट्स इट, वी हैव प्रूव्ड इट. ये डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में. सो दिस क्वांटिटी is invariant under a Lorentz transformation. That's it. So that means कि जो velocity vector हमने define किया था अभी थोड़ी देर पहले, this velocity vector that we had defined, this velocity vector's magnitude is basically this quantity. Do you see how interesting that is? This is the magnitude, मतलब magnitude square basically, and the magnitude is independent of the frame of reference. C किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसी के नहीं. C is a constant. Okay, so that means. हेलो, एक्सक्यूज Yes. सर. सर ये माइनस सी स्क्वायर तो एक प्रॉपर पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, तो माइनस सी स्क्वायर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है वो माइनस सी स्क्वायर आ रहा है. हाँ, तो सर लेंथ का मैग्नीट्यूड मतलब क्या मतलब कहना चाहिए? मैग्नीट्यूड माइनस हो रहा है तो थोड़ा सा सोच के एक बार अच्छे से क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करो. क्या पूछ रहे हो तुम? इसको 3 डायमेंशनल स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेलोसिटी के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, लेकिन जिस तरह से हमने 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम को कंस्ट्रक्ट किया है, जिस तरह से हमने 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम को कंस्ट्रक्ट किया है, और उसमें जिस तरह से हमने 4 वेलोसिटी को कंस्ट्रक्ट किया है, उस सिचुएशन में जो स्केलर प्रोडक्ट है 4 वेलोसिटी, कोई भी 4 वेलोसिटी, इसमें v डिपेंडेंट नहीं है. आई थिंक यू आर सरप्राइज बिकॉज यहाँ पे v का कोई डिपेंडेंस नहीं है ना. दैट्स वाई यू आर सरप्राइज्ड, राइट? यस और नो? यू आर सरप्राइज्ड बिकॉज यहाँ पे v का कोई डिपेंडेंस नहीं है. वेलोसिटी ज़्यादा हो कम हो उसका कोई डिपेंडेंस नहीं है. इज इट? दिस इज राइट? यस सर. हाँ, तो इट्स यूनिक इन द सेंस दैट इसमें वेलोसिटी का डिपेंडेंस नहीं है. इट्स अ माइनस सी स्क्वायर, इट्स अ कांस्टेंट. इनफैक्ट आप देखोगे कि बाकी क्वांटिटीज़ के साथ भी ऐसा है. मैं मैग्नीट्यूड, मैं मोमेंटम के लिए भी आपको ऑब्टेन कर दूंगा जो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, एंड यू विल फाइंड आउट कि दैट इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट. कांस्टेंट एज इन नॉट अ कांस्टेंट ऑफ क्वांटिटी बट सम यूनिवर्सल कांस्टेंट. So that is something unique about the way we have constructed this 4-dimensional space-time, and the way we are constructing these 4 vectors, that their magnitude is like this. Okay, important बात ये नहीं है. Important बात ये है कि it is an invariant quantity which it has to be. ठीक है, important बात ये है कि this is an invariant quantity, which is what I was interested in. ओके सर, थैंक यू. Okay, so the length of this 4 vector is sort of invariant when you go from one frame of reference to another. It doesn't matter in which frame of reference you are in, the length is always invariant.
Now there, this does not itself prove that it's a 4 vector. What proves that it's a 4 vector? What proves that it's a 4 vector is that there is a set of transformation equations. Sorry, मैंने लास्ट टाइम बताया था. When I was discussing 4 vectors. Yes, whether or not something is a 4 vector is basically, or in a sense, defined by this set of transformation equations. If there is a quantity A, then A is a 4 vector only if it contains 4 components that transform according to this equation. You remember? Yes, sir. Where lambda is a Lorentz transformation matrix. Lambda is this matrix. ये आपका important definition है. To prove that something is a 4 vector quantity, it needs to have 4 components, but those 4 components under Lorentz transformation must transform according to this equation which contains this Lorentz transformation matrix. ठीक है, तब मैं बोलूँगा कि ये 4 vector है. तो therefore, if I am defining the 4 velocity, now I also need to check whether this condition is true or not. Check करते. Let me check. Let me show you that this transformation is valid for the quantity that I've just now defined to you. Transformation of 4 velocity. So to show transformation of 4 velocity, what we are going to do is we are going to fall on the Lorentz transformations. Lorentz transformation equations से शुरू करते हैं. तो Lorentz transformation equations में हमारे पास क्या था स्टार्टिंग में? x bar naught, x bar 1, x bar 2 and x bar 3. Okay. Now let me check if you remember. x bar naught का एक्सप्रेशन क्या था, किसी को याद है? x bar 2 और x bar 3 तो x2 x3 है, वो तो याद है. What मैम about it? सर गामा एक्स नोट माइनस बीटा एक्स वन. गामा x नॉट माइनस बीटा x1. यस, वेरी गुड. एंड x1 का क्या था एक्सप्रेशन? गामा ब्रैकेट एक्स वन माइनस बीटा एक्स नोट. बीटा x नॉट. वेरी गुड. नाउ ये अगर मेरा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, very small displacements, infinite for measurements of small displacements, I can say dx bar naught is equal to gamma dx naught. I take differential, okay, in both sides of the equation b dx1. differential ले लेता हूँ मैं यहाँ पे. So dx bar 1 is equal to gamma dx1 minus beta dx naught, and dx bar 2 is equal to dx2, and dx bar 3 is equal to dx3. Now what I do is I divide this entire by the proper time. Divide each equation by proper time the tau. Okay, if I do this, I end up getting dx bar naught upon the tau is equal to gamma dx naught upon the tau minus beta dx1 upon the tau and dx bar 1 upon the tau is equal to gamma dx1 upon the tau minus beta dx naught upon the tau, and dx bar 2 upon the tau is equal to
dx2 upon d tau and dx bar 3 upon d tau is equal to dx3 upon d tau. ओके, तो अब जो है लेट अस लुक एट दीज इक्वेशंस. इसमें ये क्वांटिटी क्या है? This is the velocity vector of, this is the velocity component of the 4 vector of the this is the velocity, this is the temporal component of the 4 velocity in the S bar frame of reference. Yes or no? हर 4 वेलोसिटी चाहे वो एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो या एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, दे आर ऑल डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू द क्या बोलते हैं, प्रॉपर टाइम. तो ये क्वांटिटी आपका इज बेसिकली टेम्पोरल कंपोनेंट ऑफ द 4 वेलोसिटी इन द एस बार फ्रेम. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. What is this term? Temporal component of the 4 velocity in S frame. U naught. Yes or no? Yes, sir. Yes. What about this quantity? This is the X component of the 4 velocity in the S frame. ठीक है, ये ठीक है इक्वेशन. Yes, sir. All right. Now let's go to the second equation. What is this? This is the X component of the 4 velocity in the S bar frame of reference. ठीक है. And this quantity is equal to gamma. This is equal to gamma. This quantity is the X component of the 4 velocity in the S frame of reference, and this quantity is minus beta, the time component of the 4 velocity in the S frame of reference. This equation makes sense? Yes, sir. बाकी दो तो सिंपल है. दिस इज u bar 2 and this is u2 and this is u bar 3 is equal to u3. These are simply based on definitions of how we have defined these quantities. ठीक है. So this set of equations simply transforms into u bar naught, u bar 1, u bar 2 and u bar 3 is equal to gamma minus gamma beta 0 0 minus gamma beta gamma 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 u naught u1 u2 u3. ये क्या है? These are the components of the 4 velocity in the S bar frame of reference. ये क्या है? These are the components of the 4 velocity in the S frame of reference. अब मुझे बताओ ये क्या है? What is this? Transformation matrix. Which transformation matrix? Lorentz. Yes, very good. So this is the Lorentz transformation matrix. So this is, finally we end up getting the 4 velocity vector components in the S bar frame of reference is simply equal to lambda nu mu u to the power nu. So this is the transformation equations of the 4 velocity vector components that involves the Lorentz transformation matrix. Okay, transformation of u vector to u bar
फोर वेक्टर अंडर अ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जहाँ पे आपका लैम्डा है न्यू, म्यू इज इक्वल टू गामा माइनस गामा बीटा 0 0 minus gamma beta gamma 0 0 0 0 1 0 and 0 0 0 1. Therefore this proves finally कि ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है दे आर फोर वेक्टर्स. क्यों? क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि फोर वेक्टर वो क्वांटिटी होता है जिसके चारों कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. नहीं, ये तो x के लिए था, जनरल ए के लिए मैंने यहाँ बोला था ना, मिलने के लिए कहाँ बोला था, अभी दिखाया था ना, कहाँ गया यार. ये तो फोर वेक्टर, कोई भी फोर वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, एक्सेलरेशन वेक्टर हो, मोमेंटम वेक्टर हो, must have components that transform when you go from S frame of reference to S bar frame of reference according to this set of transformation equation that contains a Lorentz transformation matrix. And Lorentz transformation matrix का form आपको मालूम ही है, this one, ठीक है. So this proves that four velocity is a four vector. और एटलीस्ट जिस तरह से हमने फोर वेक्टर को फोर वेलोसिटी डिफाइन किया, इट इज़ अ फोर वेक्टर इन फोर डायमेंशनल स्पेस टाइम. सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन रूल. ट्रांसफॉर्मेशन रूल फॉर फोर वेलोसिटी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. All right. So we will do calculations and various kinds of calculations related to these quantities later on. बाद में करेंगे. पहले it's important that I define these quantities to you. So let me take a look. So it's better to go from okay, we have 10 minutes. So let me also define the next quantity. Next quantity define करें. फोर वेलोसिटी आपको समझ में आ गया. फोर वेलोसिटी का फॉर्म क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसका लेंथ क्या है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन सेट ऑफ इक्वेशंस क्या है. समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ पे? आ गया सर समझ. ठीक है, तो लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज फोर एक्सेलरेशन. फोर एक्सेलरेशन. या फिर एक्सेलरेशन फोर वेक्टर. बेटा म्यूट कर लो. आई थिंक इट्स समबडीज माइक इज अनम्यूटेड. ओके, जिस तरह से हमने फोर वेलोसिटी को डिफाइन किया था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर टाइम, उसी तरह से हम फोर एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर टाइम. ठीक है, हमने फोर वेलोसिटी को डिफाइन किया u म्यू, ये आपका फोर वेलोसिटी है, और फोर वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया था dx म्यू अपॉन डी टाउ. ये आपका फोर वेलोसिटी था. राइट. नाउ फोर एक्सेलरेशन जो होगा a म्यू इज इक्वल टू डी यू म्यू अपॉन डी टाउ. ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी टाउ ऑफ u वेक्टर which is nothing but d upon d tau of u is nothing but dx mu upon d tau. So इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. या आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्म्स d2x mu upon
डी टाउ स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको यहीं से किसी एक स्टेप से इसको फर्दर मैं लिखता हूँ। लेट्स सपोज यहीं से लिख देता हूँ मैं आपको। यहीं से दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टाउ। u क्या है? u कंटेन्स गामा c, गामा vx, गामा vy and gamma vz. Yes? Is it okay, guys? यस सर। ओके, तो नाउ थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, सो लेट मी सिंप्लीफाई इट। ओके, सो डी टी इज इक्वल टू गामा डी टाउ, ये हमें मालूम है। ऑलराइट, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे गामा डी अपॉन डी टी, गामा सी, गामा वी एक्स, गामा वी वाई, गामा वी जेड। ओके, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा गामा। फर्स्ट क्वांटिटी का टाइम डेरिवेटिव क्या होगा? सी तो कुछ डेरिवेटिव होगा नहीं, लेकिन गामा का तो होगा ना। गामा में वी का क्वांटिटी है, गामा का तो टाइम डेरिवेटिव होगा ना। गामा में वी है ना, गामा कंटेन्स वी, रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो गामा का टाइम डेरिवेटिव हमको हमें लिखना पड़ेगा, कॉमा। नेक्स्ट में क्या होगा? गामा डी वी एक्स अपॉन डी टी प्लस वी एक्स डी गामा अपॉन डी टी, है ना। थर्ड क्वांटिटी गामा डी वी वाई अपॉन डी टी प्लस वी वाई डी गामा अपॉन डी टी। फोर्थ गामा डी वी जेड अपॉन डी टी प्लस वी जेड डी गामा अपॉन डी टी। ये हैं आपके टर्म्स, यस और नो? Yes, sir. ये आपके टर्म्स है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ओके, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय सेइंग दैट गामा सी डी गामा अपॉन डी टी, ये क्या क्वांटिटी है? व्हाट इज दिस क्वांटिटी? डी वी एक्स अपॉन डी टी। AX। ax, दिस इज जस्ट ऑर्डिनरी एक्सीलरेशन। ऑर्डिनरी जो नॉर्मल थ्री वेलोसिटी में एक्सीलरेशन कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं, इट्स जस्ट ax प्लस वी एक्स डी गामा अपॉन डी टी। ठीक है, सेम वे व्हाट इज दिस क्वांटिटी? ए वाई, सो वी वाई डी गामा अपॉन डी टी। ठीक है, व्हाट इज दिस क्वांटिटी? ए जेड प्लस वी जेड डी गामा अपॉन डी टी। ठीक है, सो दिस बिकम्स गामा, यहाँ आपके पास हो गया सी डी गामा अपॉन डी टी। तो ये तीनों तो सेम है ना, गामा ए एक्स प्लस वी एक्स डी गामा अपॉन डी टी, गामा ए वाई प्लस वी वाई डी गामा अपॉन डी टी, गामा ए जेड प्लस वी जेड डी गामा अपॉन डी टी। राइट, सो दीज आर द सेम कॉम्पोनेंट्स फॉर एक्स वाई जेड। तो अगर ऐसा है तो इसको मैं जस्ट ऐसे लिख सकता हूँ, बिकॉज दीज आर ऑर्डिनरी वेलोसिटी कॉम्पोनेंट्स। गामा ए वेक्टर एज इन द थ्री वेक्टर, एरो लिखने का मतलब इज अ थ्री वेक्टर, प्लस वी डी गामा अपॉन डी टी। दिस इज योर फोर एक्सेलरेशन वेक्टर। दिस इज अ फोर एक्सेलरेशन, जहाँ पे this is the temporal component of the acceleration, and this is the spatial
special component of acceleration. ठीक है, so acceleration 4 vector is basically the rate of change of 4 velocity with respect to the particle's proper time. So if I want to define it in a proper way, the all of these are happening in inertial measurements. All of these measurements of the particles' velocities are happening in inertial coordinate reference frames. So in inertial reference frame, a particle's for acceleration is defined as the rate of change of 4 velocity with respect to particles, ये चीज़ ध्यान में रखना, proper time along the word line. इस चीज़ को आप समझ रहे हो? मतलब आपके पास कोई ऑब्जर्वर है, वो किसी पार्टिकल के मोशन को स्टडी कर रहा है, ठीक है, और पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, लेट्स सपोज, है ना, अलोंग इट्स मोशन. तो यहाँ पे जो हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए पार्टिकल्स प्रॉपर टाइम यूज़ करते हैं, पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर टाइम क्या है वो यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे टी क्या है? टी जो है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में है, और यहाँ पे जो टाउ स्टार्टिंग में मैंने लिखा था ये पार्टिकल के रेस्पेक्ट में है. इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. ठीक है. तो इफ़ आई डिफाइन दिस 4 वेक्टर इन सच अ मैनर, तो मैं बाकी सारी चीज़ें भी कर सकता हूँ इसमें. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ द नॉर्म ऑफ दिस काइंड ऑफ अ 4 वेक्टर. आई कैन फाइंड आउट वेरियस अदर थिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. आप इसमें एक बार ट्राई कर सकते हो घर पे. You can find out what is the norm of the acceleration 4 vector, and you can try to prove the transformation expression for acceleration 4 vector. ठीक है, you take that as a homework and you try it on your own. I'll see you in the next class.